वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। ठीक है, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए एन एरेबिक स्लज, बी rumen a part of stomach of cattle, C both A and B, D none of these. The correct answer is option number C, both A and B. Methanogenic bacteria are present in anaerobic sludge and rumen of cattle also. Next question, lichens that yield antibiotics is A ampicillin, B oxacillin, C both A and B, D tetracycline. The correct answer is option number C, both A and B. Ampicillin and oxacillin lichens yields antibiotics. Next question, acetic acid is produced with the help of. एसिटिक एसिड जो होता है वो बनता है किसकी हेल्प से? ए एल्ब्यूबो स्पीसीज, बी एजिटोबैक्टर स्पीसीज, सी एस्परजिलस स्पीसीज, डी लैक्टोबैसिलस स्पीसीज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एजिटोबैक्टर स्पीसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली गॉट फ्रॉम. एंटीबायोटिक्स सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त होती हैं? ए फंजाई, बी वायरस, सी बैक्टीरिया, डी साइनोबैक्टीरिया. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया. सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया से बनती हैं, प्रोड्यूस्ड होती हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन इनहिबिट्स बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन बिकॉज इट. पेनिसिलिन जो होता है वो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है. क्यों? क्योंकि ए checks RNA synthesis, B checks DNA synthesis, C destroys chromatin formation, D inhibits cell wall formation. The correct answer is option number D, inhibits cell wall formation. पेनिसिलिन जो होता है वो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है. क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन को पेनिसिलिन जो होता है वो क्या करता है? इनहिबिट कर देता है, बनने ही नहीं देता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉस्चराइजेशन इज हीटिंग एट A 120 degree Celsius for 60 minutes, B 60 degree to 63 degree Celsius for 30 minutes, C 70 degree Celsius for 60 minutes, D 80 degree Celsius for 30 minutes. The correct answer is option number B, 60 degree to 63 degree Celsius for 30 minutes. Next question, which of the following is not an antibiotic? इसमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? A ड्राइसोफल्विन, B cephalosporin, D citric acid, D streptomycin. The correct answer is option number C, citric acid. citric acid क्या है? विटामिन है, बाकी सब एंटीबायोटिक्स हैं इसमें. 10th देखते हैं, सेकेंडरी स्लजेस यूज. A gravitational sedimentation, B primary clarifier, C non-biodegradable materials, D microorganisms to consume waste organic. The correct answer is option number D, microorganisms to consume waste organic. Next question, indicator of water pollution is A E. coli, B cholera, C Bigeatua, D Ulothrix. The correct answer is option number, यहाँ पर ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए ई कोलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मिनेटिंग बार्ले इज एम्प्लॉयड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए वाइन, बी बियर, सी लैक्टिक एसिड, जी चीज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली वाइडली यूज्ड एंजाइम इन डिटर्जेंट्स इन. डिटर्जेंट में सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है? ए अमाइलेजेस, बी लाइपेसेस, सी प्रोटीएजेस, डी ग्लूको आइसोमेरेजेस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीएजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासेज ऑफ इफ्लुएंट्स इनटू ऑक्सीडेशन टैंक इज फॉर ए प्राइमरी ट्रीटमेंट, बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सी टर्शरी ट्रीटमेंट, डी बोथ एंड बी ए एंड बी. The correct answer is option number B, secondary treatment. Passes of influence into oxidation tank is for secondary treatment. Next question, enzymes are immobilized through A covalently attaching to solid support, B cross-linking, C entrapping in gel, D all of the above. The correct answer is option number D, all of the above.
Next question, passage of effluents into oxidation tank is for A. Primary treatment, B. Secondary treatment, C. Tertiary treatment, D. Both and A and B. The correct answer is option number B. Secondary treatment. Next question, enzymes are immobilized through A. Covalently attaching to solid support, B. Cross-linking, C. Entrapping in gel, D. All of the above. The correct answer is option number D. All of the above. Next question. Cheese and yogurt are products of A. Pasteurization, B. Fermentation, C. Dehydration, D. Distillation. The correct answer is fermentation. Cheese and yogurt are the products of fermentation. Next question. Citric acid is obtained from A. Aspergillus niger, B. Rhizobium nigricans, C. Penicillium, D. Lactobacillus bulgaricus. The correct answer is option number A. Aspergillus niger. Next question है, human insulin is being commercially produced from a transgenic species of A. Rhizobium, B. Saccharomyces, B. Escherichia, D. Mycobacterium. The correct answer is option number C. Escherichia. Next question है, the amount of oxygen required by the microbes in the decomposition of organic matter is called A. Chemical oxygen demand, B. Biochemical oxygen demand, D. C. Total oxygen demand, D. Dissolved oxygen. The correct answer is option number B. Biochemical oxygen demand. Next question, in sewage treatment process, which part of decomposers bacteria is recycled into starting of the process is called A. Cyclic treatment, B. Primary treatment, C. Tertiary treatment, D. Activated slush treatment. The correct answer is option number D. Activated slush treatment. Next question, a lake with an inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in A. Drying of the lake very soon due to algal bloom, B. An increased production of fish due to a lot of nutrients, C. Death of fish due to lack of oxygen, D. Increased population of aquatic food web organization. The correct answer is option number C. Death of fish due to the lack of oxygen. जब रिवर में सीवेज हो जाता है तब क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और फिश की डेथ होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीवेज प्यूरिफिकेशन इज डन बाय, सीवेज प्यूरिफिकेशन जो होता है वो किया जाता है ए. माइक्रोब्स, बी. फर्टिलाइजर्स, सी. एंटीबायोटिक्स, डी. एंटीसेप्टिक्स. The correct answer is option number A. Microbes. Sewage क्या है? What is sewage? Sewage is waste material. Sewage waste material होता है like human urine. तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो हमारा सीवेज होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसमें से हम कंटेमिनेंट्स को निकाल देते हैं बाय द यूज़ ऑफ हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स. ये हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स जो होते हैं ये नेचुरली सीवेज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं को यूज़ कर कर कंटेमिनेंट्स को वेस्ट वाटर से निकाला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, activated sludge has the ability to settle quickly. This enables it to A. Be rapidly pumped back from sedimentation to aeration tank, B. Absorption pathogenic bacteria while sinking to the bottom of the settling tank, C. Anaerobically digested and be discarded, D. Absorb colloidal organic matter. The correct answer is, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. बी. रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टू एरिएशन टैंक. एक्टिवेटेड स्लग जो होता है उसमें एक एबिलिटी होती है क्विकली सेटल डाउन होने की, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रैपिडली पम्प्ड होता है, पीछे की तरफ आता है सेडिमेंटेशन टू
किसकी तरफ आएगा, सेडिमेंटेशन से एरिएशन टैंक की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जट्रोफा इज अ बायोडीजल क्रॉप, बी बायोपेट्रो क्रॉप, सी फाइबर क्रॉप, डी फूड क्रॉप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जट्रोफा इज अ बायोडीजल क्रॉप। जट्रोफा जो है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। जट्रोफा क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसके अलावा ये यूफोर्बिएसी के स्पर्ज फैमिली का मेंबर है, ठीक है। कौन सी फैमिली का मेंबर है, स्पर्ज फैमिली का मेंबर है। करेंटली जो जट्रोफा प्लांट है, कौन सा जट्रोफा प्लांट है जिसके सीड्स को यूज किया जाता है बायोडीजल बनाने के लिए, तो करेंटली अभी एक ही यूज हो रहा है, वो कौन सा है, जट्रोफा कर्कस। जट्रोफा कर्कस को के सीड्स को यूज किया जाता है बायोडीजल बनाने के लिए। और कहाँ पर यूज होता है, ये ब्राजील एंड फिलीपींस में यूज होता है, ठीक है। फिलीपींस में अभी यहाँ पर 2 ही कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर जट्रोफा से बायोडीजल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरेथ्रिन इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ ए मॉस्किटो कॉइल्स, बी फ्लाई sprays, C mosquito mats, D all of these. The correct answer is option number D all of these. ओके, इसका क्वेश्चन क्या ठीक हो जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर ठीक होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द दीज। पैरेथ्रिन जो होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पैरेथ्रिन जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है, किससे ऑब्टेन्ड होता है, क्राइसेंथेमम सिनेरी फोलियम के इन्फ्लोरेसेंस से ये ऑब्टेन किया जाता है। और पैरेथ्रिन जो होता है यूज किया जाता है स्प्रेज में, मॉस्किटो ऑयल्स कॉइल्स में, मैट्स में एंड एरिसोल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the free living fungus trichoderma can be used for A killing insects, B biological control of plant diseases, C controlling butterfly caterpillars, D producing antibiotics. The correct answer is option number B, biological control of plant diseases. ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा जो है वो पहले तो फ्री लिविंग सैप्रोफिटिक फंजाई है, ठीक है। फ्री लिविंग कैसी है, सैप्रोफिटिक फंजाई है, सैप्रोफिटिक फंजाई होती है। इसके बाद ये इसका हैबिटेट क्या है, अगर हैबिटेट की बात करें तो ये लिव्स ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल के अंदर जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे या राइजोस्फीयर होंगे वहाँ पर ये मिलती है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा क्या करता है, इनहिबिट्स पैथोजेंस, ये पैथोजेंस को जो है रोक देता है, क्या रिलीज करने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको रिलीज करने से रोकता है, तो वो सब्सटेंसेस है, पहला सब्सटेंस जो है वो है हमारा ग्लायोटॉक्सिन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ग्लायोटॉक्सिन इनहिबिट करता है, विरिडिन इनहिबिट करता है, इसके बाद ग्लाइवोरिन करता है, ठीक है। ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जिनको ये इनहिबिट करता है, रिलीज होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर A killing insects, B biological control of plant diseases, C controlling butterfly caterpillars, D producing antibiotics. इसका ऑप्शन सही है बी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन बायो remediation of oil spills is a species of Pseudomonas, Trichoderma, C. Xanthomonas, D. Bacillus. The correct answer is option number A. Pseudomonas जो होते हैं उनको जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बायो रेमिडेशन ऑफ ऑयल स्पिल्स के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायरल पेस्टिसाइड यूज्ड अगेंस्ट जिप्सी मॉथ इज A. NPB, B. Noxema, Locusti, C. Fusarium, D. Beauveria,
वैसियाना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनपीवी। एनपीवी है क्या? ये है न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस। ये एक वायरस है और ये क्या है? बैक्यूलो वायरस है, जो कि यूज किया जाता है जिप्सी मॉथ, एफिड्स और बीटल्स को रोकने के लिए। ठीक है, किसके लिए? बीटल्स, एफिड्स और जिप्सी मॉथ। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एज द सोर्स ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड। ए, क्राइसेंथेमम cinerifolium, B, Phytophthora palmivora, C, Bacillus, D, both A and C. The correct answer is option number C, बैक्टीरियल स्पीसीज, जैसे कि हम बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस बोलते हैं, इसको जाना जाता है। एक वाइड रेंज होती है, वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स को किल करने के लिए किसको यूज किया जाता है? बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस को यूज किया जाता है। और ये किस तरीके के इंसेक्ट्स को किल करता है? ये यूज किया जाता है बीटल्स के लिए, मॉस्किटो के लिए, आंट्स के लिए। ठीक है, और ये क्या है? बायो इंसेक्टिसाइड है। क्या है? बैसिलस बायो इंसेक्टिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर बायोगैस प्रोडक्शन बिसाइड डंग एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ विच वीड इज रिकमेंडेड इन आवर कंट्री? ए, मैग्निफेरा इंडिका, बी, हाइड्रिला, सी, इकॉर्निया क्रेसिपस, डी, सोलेनम। The correct answer is option number C, Eichhornia crassipus. Next question है, organic farming includes use of fertilizers and pesticides of biological origin, B, IPM integrated pest management program, C, locally developed pest resistant varieties, D, all of the above. The correct answer is option number B, IPM integrated pest management program. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टू एस्पेरिलियम, एजिटोबैक्टर, एनाबिना, नॉस्टिक एंड ऑसिलेटोरिया? ए, प्रोकैरियोट्स, बी, एंटोफिक्सर्स, सी, बोथ ए एंड बी, डी, यूकैरियोट्स। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bacillus thuringiensis strains have been used as A, biofertilizers, B, biometallurgical techniques, C, biomineralization process, D, bioinsecticidal plants. इसको ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजोला एनरिचेस rice fields with nitrogen due to its association with A, Anabaena, B, Nostoc, C, Rhizobium, D, Frankia. The correct answer is option number A, Anabaena. एजोला जो होता है वो राइस फील्ड्स में अगर नाइट्रोजन के साथ जब मिक्स होता है, किसके साथ होता है? एनाबीना के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन A is used in A, whooping cough, B, diphtheria, C, leprosy, D, organ transplant patients. The correct answer is option number D, organ transplant patients. Next question है, the bacterium that commonly lives in animal and human intestine is A, Bacillus anthracis, B, Vibrio cholera, C, Escherichia coli, D, Proinibacterium. The correct answer is ऑप्शन नंबर सी, इरेशिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को लेकर। ठीक है, अगले
वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।